Moving on, let's talk about the diagrammatic representation of sets. Okay, now these are known as Venn diagrams. तो हम Venn diagrams बहुत ज्यादा बोलेंगे. So they are called Venn diagrams. What is a Venn diagram? Let's talk about it. Let me talk about a universal set. U is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And let me talk about a set A, that is 1, 2, 3, 6, 9. Okay. How to represent it pictorially? Let's talk about it, or diagrammatically. Now, firstly, I draw a rectangular box. It's a constant notation. ये सब कोई same बनाता है, इसलिए हम भी rectangle बनाते हैं, and it represents a universal set. What does it represent? Universal set. Now, if you understand, A जो है ये एक universal set का एक part है. Yes or no? Can I say A is a subset of universal set? Yes or Yes. no? Definitely. Yes. All the elements are coming from U only, तो ये definitely एक subset है. So if I say मैंने एक A डिफाइन कर दिया और सेट्स को रिप्रेजेंटेशन का नॉर्मल तरीका है एक सर्कल. हम एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से. तो यहाँ पे A लिखा अगर मैंने, तो इसका क्या मतलब हुआ? A के अंदर आ जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9, 4, 5, 7, 8 and 10. Now, can you understand what is happening? Universal set के अंदर 10 elements थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if you see a rectangle, it has all the elements 1 से लेकर 10 तक. But मैंने A जो represent किया है उसके अंदर क्या क्या elements लिए हैं? 1, 2, 3, 6 and 9. Any issues, anyone? No. Okay. यहीं पे एक छोटा सा मैं तुम्हें चीज सिखा देता हूं. अगर ये A है, so can you tell me what is A complement? मैं और बता दूंगा इसके बारे में हालांकि, और इसको हम और लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो नॉट A. तो ये पहली बात तो एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि ये भी एक सेट होगा. क्या होगा? ये भी एक सेट होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे. और वो एलिमेंट्स कौन से होने वाले हैं? कोई गेस करना चाहेगा? 4, So 5. whatever is not an A. Perfect. 4, 5, 7, 8 and 10. A very simple thing to do. Yes or no? Yes. Yes, sir. परफेक्ट. सो वेन डायग्राम समझ में आता है. एक वेन डायग्राम और बना के बताता हूँ. एक एग्जांपल और ले रहा हूँ. आई मीन ये जो है यूनिवर्सल सेट है. यू है इंग्लिश अल्फाबेट्स. और मैंने ए डिफाइन कर दिया वॉवल्स. ट्रू और नॉट? True. True. So True. can someone tell me what is A Yes. complement here? All the consonants. Consonants. बिल्कुल सही. Set of consonants. Any doubt, anyone? Understanding how is it being represented? Any problem, anyone? No. No, sir. Okay. Then let me talk further about Venn diagrams. Now अभी तक मैंने क्या किया? एक सेट को Venn diagram के अंदर रिप्रेजेंट किया है. Now let's represent two sets simultaneously in a Venn diagram. So मैं बहुत important चीज बताने जा रहा हूँ. प्लीज फोकस करेंगे. ओके. इंटरैक्शन बिटवीन टू सेट्स. दो सेट्स के बीच में अगर इंटरैक्शन है तो वो किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेन डायग्राम में हम बात करते हैं. तो देयर आर 3 पर्टिकुलर केसेस जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं. 3 पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज
this A, B, a universal set. So मैं universal set constant ले रहा हूँ अभी के लिए 1 2 3 till 10. ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ A as 1 2 3 and B as 5 7 10. Any problem anyone? No, sir. ये एग्जांपल है ना. Second type, which is like this. This is universal set, this is A and this is B. एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखें. 1 2 5 7 and B is 5 7 9 and 10. Can you see what is happening here? There are a few elements that are common in A and B. है कि नहीं? Yes, sir. This is the part that represents the common part between A and B. Yes or no? Yes, sir. जब मैं इसे फिल करने लगूंगा तो मैं इसे फिल करते समय ये कहूंगा कि देखो यहाँ पे 1 और 2 आएगा, 5 और 7 आएगा, यहाँ 9 और 10 आएगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रही है Yes. बात? How is it working? जब मैं A की बात करूंगा, again pay attention, when I'm talking about A, number of elements in A here are still 4. Still the number of elements in A are 4. Number of elements in B is 5. no beta 4 no beta 4. 4 ही है ना. देखो 1 2 3 4 whatever is included within this circle. Yes, sir. Yes. बट कलेक्टिवली जब मैं A और B की बात करता हूं तो मेरे पास रिपीटेशन हम नहीं लिखते. यस और नो? Yes, sir. So this is the second case, the most general case. हम जब भी बात करेंगे ऐसा ही कुछ केस लेके बात करने वाले हैं. एंड लास्टली थर्ड पर्टिकुलर केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है. एग्जाम्पल, A is 1 4 6 9 10 and B is 4 9 10. So every part of B is an A. Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. Can I say that B is a subset of A? Yes, sir. Yes, sir. So to represent a subset in Venn diagrams, can we do we understand it now? Yes or no? Yes. Yes. अगर मुझे इसमें एलिमेंट्स लिखने होंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 9 और 10, यहाँ लिखूंगा 1 और 6 और बाहर बाकी के. कोई तकलीफ किसी को? No, sir. So does everyone understand how does Venn diagrams work? It draws boundaries within universal set so that वो अपने अपने सेट्स को स्पेसिफाई करते चले. Yes or no? Yes, sir. Yes. Any issues anyone? No, sir. Okay. I'll talk about operations on sets. इसी को हम बोलेंगे algebra of sets. ठीक है? And I will explain everything with respect to Venn diagrams.
ओके हम वेन डायग्राम्स को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं. ओके so we have to be very aware about what is going on with Venn diagrams. Venn diagram के साथ क्या चल रहा है, what region represents what. हम बात करना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से देखेंगे स्टार्ट करेंगे. I'll talk about a few operations today and then a few operations tomorrow. So let's talk about a few operations today. First, let's talk about A union B. How it is read? A union B. यूनियन का मतलब ही होता है मिलन, राइट? ए और बी को मिला दिया गया. इसको इंग्लिश में बोलते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बिकॉज कई बार जो स्टेटमेंट्स हमारे पास लिखे हुए आएंगे, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लिखी हुई आएंगी, वो तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होगी. तो इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? ए और बी. व्हाट डज इट मीन? मैं लिखता हूं. ए यूनियन बी इज अ सेट. फर्स्टली तो ए यूनियन बी को एक नया नाम दिया जा सकेगा कभी भी पी. ए यूनियन बी भी क्या होने वाला है? एक सेट होने वाला है. सो ए यूनियन बी इज अ सेट containing elements that either belong to A or B or both. या तो वो ए से बिलोंग करता हो, या वो बी से बिलोंग करता हो, या वो दोनों से बिलोंग करता है. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं इसे, ये ए है, ये बी है. ए यूनियन बी represents this shaded region. Either in A or in B or in both. Yes or no? Okay. Please pay. हाँ, किसी को प्रॉब्लम है समझने में? अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, राइट, और मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं, तो पहली बात तो ए यूनियन बी इज गोइंग टू बी अ सेट that contains elements that either belong to A or B or both. So when I'm going to write A union B, what I'm going to write is 1, 2, 5, 7, 9 and 10. Why am I not writing 5, 7 again and again? दो बार लिखना चाहिए था क्या मुझे 5, 7? No, sir. क्यों? Repetition does not matter in a set. Even if I have written 5 and 7 twice, I will only consider it once. I will only count it as 1. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ओके नाउ अगर मैं बात करूं इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा और समझेंगे. मैं ये बात करता हूं, देखो ये जो, चलो मैं थोड़ी सी देर बाद में बात करता हूं. आई विल कम टू द ऑपरेशन, आई विल टॉक अबाउट इट टुमारो. आज ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगी. ओके फर्स्ट ऑपरेशन क्लियर है सबको? ए यूनियन बी, इट कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम आइदर ए और बी और बोथ. इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है? ए और बी. मूविंग ऑन to the second operation that we are going to talk about, it's A intersection B. A intersection B. इसको लिखा जाता है A and B in language. क्यों A and B लिखा जाता है? A intersection B is a set again containing elements that belongs to both A and B. जो कॉमन पार्ट होता है ना A और B का, वो होता है A इंटरसेक्शन B. तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, हाउ विल आई डू इट? लेट्स सी.
विच पार्ट ऑफ वेन डायग्राम, जिसको भी समझ में आ जाए प्लीज से यस मेरे ड्रॉ करने से पहले कि सर इसमें से ये वाला जो रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करने वाला है। समझ में आता है क्या सबको? यस सर। ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से भी बिलोंग करना चाहिए, ए और बी के बीच का कॉमन पार्ट। तो ये जो कॉमन पार्ट क्या है, ये जो एक शेप बनता है पत्ती जैसा, दिस रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी। यस और नो? Yes, sir. सबको बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, A is 1 2 3 4 5 एंड B ले लूं 3 4 6 9, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? थ्री और 4 हो जाएगा क्या? Yes, sir. अगेन अ सेट ओनली। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ एंड देन आई विल एंड द क्लास, एंड इससे आगे के ऑपरेशंस हम कल बात करेंगे। एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा है, और वो किस तरह का है डेटा, मैं कहता हूँ लेट्स से दो सेट्स है मेरे पास, ए और बी। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेट्स से 40 40, और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 30, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है 10। ओके, तो देखें हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैं मतलब इस डेटा के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मुझे मेरा वेन डायग्राम फिल करना चाहिए, और मेरा वेन डायग्राम जब मैं ये दो सेट्स के बारे में जब बात करता हूँ ना, तो मेरे पास तीन पार्ट्स बनते हैं, एक्चुअली रादर चार पार्ट्स बनते हैं। मैं तीन पार्ट्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करूंगा। जैसे ये सेट, मैंने दो सेट्स बनाए, इसके अंदर देखो मैं कलर से मार्क कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो है वो ये है, देखो दूसरा पार्ट जो है वो ये है, और तीसरा पार्ट जो है वो ये है। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो मुझे तीन पार्ट्स फिल करने चाहिए इसमें। मैं कहता हूँ कैसे, मैं कहता हूँ ए इंटरसेक्शन बी 10 है, तो ये 10 हो गया क्या? अब देखो ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 40। ए में टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 40। तो मैंने कहा ये जो पार्ट बचा, ये 30 बचा क्या, ताकि 30 प्लस 10 Yes, 40 हो sir. सके, क्योंकि ए का जो सर्कल है वो टोटल 40 का सम देना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट। और ये वाला जो लास्ट पार्ट बचा, थर्ड पार्ट, इसको मैं क्या फिल करूंगा यहाँ पे? 20. बिल्कुल सही, 20, बिकॉज बी का सम कितना आना चाहिए? टोटल 30 आना चाहिए। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने नजर आ रहे तुम्हें? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स नजर आएंगे? 10. ए यूनियन बी बेटा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी, आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। 70. Sir, maybe 60. Okay, I am getting two answers, 60 or 70. कोई चेंज करना चाहेगा अपना आंसर? Okay, my answer would be 60, and 60 is correct, 70 is incorrect. Now why is 70 incorrect? Because of this same reason. Let's talk about the upper example जहाँ पे तुम्हें दिखाई देंगी चीजें। Now जिसने भी मुझे 70 आंसर किया उसने क्या किया? 40 plus 30 ऐड किया, राइट? बट इसके अंदर क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स रिपीट होने लग गए, जैसे 5 और 7। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है? 6 ही है क्या? यस और नो? Yes, sir. राइट? सो ए यूनियन बी को काउंट करने का सही तरीका क्या होगा हमारे लिए?
30 प्लस 10 प्लस 20, क्योंकि यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने हर एक इंडिविजुअल पार्ट को फिल किया है और इन तीनों का सम मुझे क्या देगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरा 60, 30 प्लस 10 प्लस 20। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. लास्ट में बस मैं ये कहूंगा कि इसको रियल लाइफ के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे। मैं कहता हूं लेट्स से एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर मैं स्टडी करता हूं, तो मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर आर 40, number of students reading English newspaper are 30, and number of students reading both Hindi and English newspaper are 10. How many students in school read at least one newspaper? कि कम से कम वो एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हों। अभी जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आइदर वो एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर वो दो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे। यस और नो? Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन को जब हम डील कर रहे होंगे, हम इसको इस तरह से डील कर रहे होंगे वेन डायग्राम्स के साथ। तो मैं कहूंगा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर्स है, इनको मैंने ए का सेट मान लिया। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इसको मैंने बी सेट मान लिया। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश को मैंने ए इंटरसेक्शन बी मान लिया। यस और नो? Yes. और ये जो मुझसे पूछ रहा है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, ये क्या है, ए यूनियन बी। या तो वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो या वो दो न्यूज़पेपर पढ़ता हो। यस और नो? Yes or no? Yes. Yes, sir. That is it from my side for